A very good morning to all my dear students. Today we are here with our new poem from the book Flamingo. This poem is the second poem from our book, and the name of this very poem is An Elementary School Classroom in Islam, which is written by Sir Stephen Harold Spender. But you will find only Stephen Spender in your book. So I will discuss about how he got the Sir in his name. But before discussing anything else, we should discuss about that what we are going to cover throughout the video. Generally, we are going to cover the introduction to the poet as well as the introduction to the poem. We will also going to do the explanation, the theme, the difficult words as well as the literary device which are just used by Stephen Spender throughout his poem. Now, this is all about we are going to discuss with. Now let's start our video with the introduction of our prolific poet, that is Stephen Spender. Stephen Spender's full name was Sir Stephen Harold Spender. Sir here doesn't denote that he is a schoolmaster. Sir is a kind of rank given by the higher authority of that country in the area of knighthood. Knighthood means Yodha, Veer Yodha. Then he was also a CBE. CBE, what do you mean by CBE? A commandership rank is also known as CBE. For example, we have some of the military officer like DIG, IG. It is also a like CBE. So he just taken out the birth in 28 February 1909. 16 July 1995 he got died. In the time period of his lifetime, he got this very rank and knighthood throughout his life. It means it has been clear that being a novelist, essayist, poet, and generally anything else, he just given also a kind of knighthoodship for being a fellow in the Civil War. Now, he was an English poet, also a novelist. He was an essayist too, whose work was totally concentrate on the theme of social injustice. Social injustice means here the social inequalities, the upper and the lower class conflicts, as well as the layer in which the bureaucrats are living and they are doing the exploitation of the lower class and the middle class people. And he also discussed about the class struggle. Class struggle means that class of lower and middle and the higher class struggle. He was appointed poet laureate consultant in poet to the United States Library of Congress in 1965. Let me introduce what do you mean the poet laureate. The poet laureate here given as a kind of poet officially appointed by the government or conferring institution, typically expected to compose poems for special events and occasions. That means अगर हम हिंदी में इसकी इन अ शॉर्ट वे हम हिंदी में कहें तो एक राज कवि को हम पोइट लॉरिएट कहते हैं. आई थिंक यू हैव जस्ट गॉट व्हाट डू यू मीन बाय द पोइट लॉरिएट हियर, जो सिर्फ उस राज्य में होने वाली घटनाओं के बारे में, स्पेशल इवेंट्स और ओकेजन्स के बारे में पोम्स जो है वो कंपोज करता है. तो उसे हमें यू कैन से पोइट लॉरिएट जो है चुना गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में कब 1965 में. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एंड नो समथिंग मोर अबाउट दिस वेरी प्रोलिफिक पोइट. We have just done all these two slides, and now let me give you one example. What is the occupation? Poet, novelist and essayist. He was a British by his nationality. If I am talking about the alma mater, what do you mean by the alma mater? Alma mater means a kind of institution from you belonged with your study. जहाँ से आपने पढ़ाई की हो, जहाँ आप you can say get your degree and anything else. तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी. हु इज स्पाउस हियर? नाउ स्पाउस मीन्स आप अगर इफ़ यू आर ए मेल देन यू कैन
you can tell your wife as your spouse, and if you are a female, then spouse will be your husband. So spouse is a common name for the male and female, for both wife and husband. So here if we have the male poet, so the spouse will be the wife. The name of the wife is Ines Piran as well as the Natasha Letwin. That means the two of the marriage taken place in his life. Now, in the previous first of the slide, we have discussed about the CBE. What do you mean by CBE? Here, this is the rank and this is the kind of medal. This is the rank of commander, CBE. It has given in order of excellence. It is a kind of bravery medal and awarded to anyone who has made a significant achievement of the United Kingdom. राइट जिस भी सोल्जर ने जिसने भी अपने यूनाइटेड किंगडम की अचीवमेंट्स के लिए कोई भी काम किया हो, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हो, उसको ये रैंक दिया जाता है. उस रैंक में हमें इस तरीके का मेडल दिया जाता है. आई होप दैट यू हैव गॉट व्हाट डू यू मीन बाय CBE हियर. Now this is more information about some of the additional things about the Sir Stephen Harold Spender. For example, I will highlight only few of the things. He attended Oxford University and fought in the Spanish Civil War. I told you that he got some of the rank because that he fought in the Spanish Civil War. And he attended Oxford University. There is an interesting story about his education that in the foremost thing he never get a degree. It means that he never attend the college or the university at its most. So he got no degree about the education. So in 1920s and 30s he associated with the other poets and socialists such as W.H. Auden, Christopher Isherwood, Louis Macnish and C.D. Lewis. And his early poetry was often inspired by social protest. इन शॉर्ट इफ आई विल से उस टाइम 1920 और 1930s में W.H. ओडन, क्रिस्टोफर इशरवुड जैसे बहुत सारे पोइट और सोशलिस्ट थे जो समाज के लिए काम कर रहे थे, और उनकी जो पोइट्री थी वो सोशल प्रोटेस्ट को क्या कर रही थी, इंस्पायर्ड कर रही थी. प्रोटेस्ट होता है आप किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जब जाते हो. इट मीन्स जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा प्रिवेल हुआ, यानी कि जब मशीनीकरण ज़्यादा, उद्योग ज़्यादा बढ़े, तो उन्होंने जनरली किन चीज़ों पर ज़्यादा प्रभाव छोड़ा, वो थे लोअर मिडिल क्लास, जिनकी अपनी ज़िंदगी नहीं होती थी, जो सिर्फ काम करते थे, अपनी वर्किंग लाइफ जीते थे, और उन्हें शिकार होना पड़ता था ब्यूरोक्रेट्स का, अरिस्टोक्रेट्स का. सो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए अपनी पोइट्री राइटिंग जो है वो लिखनी शुरू की. और सर स्टीफन हैरोल्ड स्पेंडर ने भी बहुत सारी ऐसी सोशलिस्ट जो चीज़ें की हैं जिनकी वजह से आज उन्हें बहुत महान दर्जे मिले हैं. नाउ during World War II, it was the time period of mid of the 20th century, 1939 approximation, and Spender worked for the London Fire Service. तब वो किस चीज़ के लिए काम कर रहे थे, अग्नि दल के लिए. जैसे हमारे यहाँ फायरमैन होते हैं, वो फायरमैन की तरह काम कर रहे थे. And then he was co-founder Horizon magazine with Cyril Canoel and served it as the editor from 1939 to 1941. That was the time period of World War II. इन्होंने दो काम किए, दो जॉब की. One is of the London Fire Service and another one is the Horizon magazine के लिए उन्होंने co-founded का काम किया, जिनमें उन्होंने एडिटरशिप भी निभाई. कब से लेकर 1939 से लेकर 1941 तक. होरिज़न मैगज़ीन उस टाइम की सबसे प्रोलिफिक और फेमस मैगज़ीन थी, जिसमें आम तौर पर हर एक चीज़ के बारे में या पोइट्रीज़, कोई नॉवल, नॉवेलाज जितने भी हैं वो छपते थे. ही वॉज एडिटर ऑफ द इनकाउंटर मैगज़ीन फ्रॉम 1953 to 1966. आफ्टर गेटिंग द एक्सपीरियंस फ्रॉम द एडिटरशिप ऑफ द होरिज़न मैगज़ीन, he became an editor of another great magazine, that is Encounter magazine, and the time period was 1953 till to 1966. Here are some of the poetry including 20 poems, and here are some of the things which as you can relate. So I will tell you about that. What are the poems? Poems were poetry words. The 20 poems which is written by him in 1930. Vienna was written in 1934. The Still Center in 1939. Poem of Dedication
in 1946 and the Generosity in 1971. Spender was, these were some prolific, you can say, famous work which has just written during the World War II. So it was generally so get the fame, and these were all generally about the generosity and the social awareness. So Spender was professor of English at University College. At least he didn't get the degree of anything, but he just accomplished some of the diplomas. So he got to the professorship of English at University College London from 1970 to 1977, and he gave frequent lecture tours in the United States. उन्होंने अमेरिका में बहुत सारे लेक्चर टूर्स किए हैं. दैट मीन्स लेक्चर टूर्स क्या होते हैं, जब आप एक जगह से दूसरी जगह लेक्चर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर देने के लिए, डिलीवर करने के लिए जाते हैं. ही वॉज नाइटेड इन 1983. उसको जो नाइटहुडशिप मिली थी वो कब मिली थी? 1983 में. उसको जो सर की उपाधि थी वो कब मिली थी? 1983 में. Spender died on July 1995. He just got died in the last of the 20th century era. Now here is the picture. You can see the slum area, an elementary school classroom in slum area. Slum area means झुग्गी या झोपड़ियाँ, जहाँ पे जनरली आपको बहुत ही रश मिलेगा, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका मिलेगा. वहाँ पे आपको अगर स्कूल देखने की अगर कभी मौका मिले, देन प्लीज़ गो फॉर इट. देन यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ थिंग in which the huge mass, you can say, crowd of students who are just generally found and combined in all way within one classroom. So just like this, there is no uniform, there is a greasy wall, there is no you can say specific, we can't even call it as a blackboard. It has been already done with the white thing and some of the things like this. मैं आपको ये पिक्चर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमारी पोम में हम यही सिनेरियो लेकर हम पूरी पोम को आगे बढ़ाएंगे. इमेजरी यही यूज़ होगी. दैट्स वाई. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम. नाउ दिस वन इज़ द एरिया ऑफ स्लम. स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ियाँ आपने देखी होंगी. दिल्ली साउथ दिल्ली में अगर आप जाते हो तो मेट्रो के साइड में भी आपको बहुत सारे स्लम एरियाज़ दिखाई देंगे. तो ये कुछ वही है. देन आपको सिनेरियो जो है अपने माइंड में रखना है कि किस तरीके का माहौल वहाँ हो सकता है, जिस अकॉर्डिंग हम अपनी पोम में पढ़ने जा रहे हैं. नाउ बिफोर एनीथिंग एल्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस पोम में हमारा पोइट जो है वो हमें सोशल अवेयर करना चाहता है कि किस तरीके से स्लम एरिया में, गरीबी वाले तबके एरिया में, जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है, वहाँ जहाँ खाने और भूखमरी जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वहाँ पर हमें एक ऐसा स्कूल के बारे में विवरण देंगे, यानी कि एक्सप्लेनेशन देंगे, बताएंगे कि किस तरीके से वो बच्चे उस क्लासरूम में बैठे हैं और किस तरीके से उस क्लासरूम का पूरा सिनेरियो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे. वी विल गो फॉर इट इन दिस नेक्स्ट स्लाइड इन द वीडियो. हियर इज़ द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. लेट मी टेल यू वन थिंग. बेटा ये पोम पूरी नहीं है. ये पोम जो है वो एक्सट्रैक्ट है, एक भाग है, एक पार्ट है. किस बुक का? द गॉड दैट फेल्ड. इन 1949 में उन्होंने लिखी थी. अब आप इस बुक के इस टाइटल से ही आपको पता लग चुका होगा, भगवान जो फेल हो चुके हैं किस चीज़ में? मानवता को इक्वल बनाने में. इस पूरी कलेक्शन ऑफ बुक में यही बात थीम जो है प्रिवेल कर रहा है कि जिस चीज़ का लेना जिस चीज़ से नहीं है, हम उन्हीं चीज़ों को साथ में रखते हैं. अब वो चीज़ क्या है वो हम इस पोम में पढ़ेंगे. किन दो ऐसी चीज़ों को साथ में रखा गया है जिनका आपस में कोई मेल नहीं है, आपस में कोई आइडेंटिटी नहीं है. सो द नेक्स्ट हियर पैराग्राफ सेज, the poem written by Stephen Spender describes the social inequalities which were prevailing in the society. अब हमारे पोम के जो पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर, वो जनरली डिस्क्राइब करते हैं उन सामाजिक इनइक्वालिटीज़ का जो प्रिवेल कर रही हैं, प्रचलित हैं सोसाइटी में. इन द पोम ही डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल. अब इस पोम में हमें जो कंडीशन है स्टूडेंट्स की वो हमें डिस्क्राइब की जाएगी, जो कहाँ पढ़ते हैं, एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं, विच इज़ सिचुएटेड इन स्लम एरिया, जो एक बिल्कुल गरीब तबके के मिडल में एक एस्टेब्लिश स्कूल है, जिसे हम एलिमेंट्री स्कूल भी बोलते हैं.
तो उस स्कूल में जो बच्चे हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं, किस कंडीशंस में पढ़ते हैं, क्या सिचुएशन है, कैसा वो क्लासरूम है, कैसे उन बच्चों की हालत है, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे थ्रू आउट द पोम. The poet wants to draw the attention of everyone towards these keys so that their life can be improved and they may get trained to become good citizens rather than criminals. अब ज़रूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा आदमी हमेशा एक बिल गेट ही बने या फिर अनिल अंबानी ही बने. ही मे कैन बी क्रिमिनल बिकॉज क्योंकि उसकी जो बेसिक जो इन एजुकेशन होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती है. इसलिए बहुत सारे स्लम एरियाज़ में से आपने देखा होगा कि गुंडागर्दी में उतर आते हैं, यानी कि गुंडे बन जाते हैं, रास्कल्स बन जाते हैं. तो पॉइंट जो है वो हमारी टेंशन यानी कि हर एक स्ट्रीम की, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो अशर्स हो, वट एवर बी दैट, हर एक इंसान की इनकी तरफ ध्यान दिलाकर कहना चाहता है कि ये किड्स जो हैं, हम काफ़ी पुअर्टी वाली जो है वो लाइफ जी रहे हैं, हम इनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ये भी अच्छे सिटीज़न बने, ना कि क्रिमिनल. ओके, दे आर गेटिंग एजुकेशन इन द एलिमेंट्री स्लम एरिया बट द एजुकेशन वॉज नॉट प्रॉपर. वो वहाँ कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है कि उनको एक गुड सिटीज़न बनाया जाए, जबकि हम सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है, इनकी लाइफ सुधारने की ज़रूरत है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. While talking about the rhyme scheme of this very poem, the poem has been written in the free words बेटा. यहाँ जो है वो कोई वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे फ्री वर्ड्स है, there is no rhyme scheme. So let's move towards the next slide. Here's the poem and the explanation. Now let's come towards the poem. Here it says, far, far from gusty wave these children's faces. Like rootless weeds, the hair torn round their pallor. The tall girl with her weight down had the paper seeming. The boy with red eyes, the stunned unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk at the back of the dim class, one unnoted sweet young, his eyes live in a dream of carol game in the tree room other than this. Let me give you the some of the you can say meaning of the difficult words. Is the gusty. Gusty means a kind of wavy, windy. Wavy waves जो बहुत ज़ोर ज़ोर से जो ये हवाएं चल रही हैं, इनका दूर दूर तक इन बच्चों के फेसेस से लेना देना नहीं है. वो कैसे चल रही हैं, वो बात करता है कि विंडो की जो ओपन है और वहाँ से बहुत हवा तेज़ आ रही है और वहाँ से इन यू कैन से इन बच्चों का लेना इस हवा से नहीं है. वो हवा किस चीज़ की है, मॉडर्नाइजेशन की, बाहर के आउट ऑफ वर्ल्ड की. अब वो उनको क्या बोलता है, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन देयर पैलर. पैलर मीन्स पेल. पेल मीन्स विच हैज जस्ट नॉट एनी काइंड ऑफ चार्म. जिनके चेहरे पर कोई लालिमा ना हो, कोई चार्म ना हो, कोई यू कैन से ग्लो ना हो, तो उनके जो हेयर हैं वो कैसे हो चुके हैं, एक रूटलेस वीड की तरह. वीड्स क्या होते हैं, वीड होते हैं खरपतवार जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हमारे खेतों में उगाते हैं या फिर ऐसे यू कैन से झाड़ उगाते हैं, तो हम उन्हें वीड्स बोलते हैं. देन हियर ही कंपेयर देयर हेयर विद द वीड्स. वो कहता है कि उनके हेयर कैसे हैं, उनके रूटलेट वीड्स की तरह हैं जो बिल्कुल उखड़े हुए हैं. यानी कई बार आपने देखा होगा कि उनके गोल्डन से बाल हो जाते हैं और वो ऐसा लगता है जैसे अनहाइजीन हो, बहुत दिनों से धोया भी नहीं हो. तो उस तरीके से अगर घास सूख जाती है, वीड सूख जाती हैं, तो उनके बाल उनके जैसे दिखाई देते हैं ना. उनके फेसेस कैसे हैं, काफ़ी पेलर हैं, और उनके बाल भी कैसे हैं, पेल हैं, डल हैं. और वो सारे जो बाल हैं वो कहाँ पड़े हैं, उनके डल फेस पे. तो वो यहाँ पर एक वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देता है एक टॉल गर्ल का, जो कैसे बैठी हुई है, अपना सिर नीचे करके, वे डाउन करके अपना हेड को बैठी हुई है. नाउ द पेपर सीमिंग बॉय. अब वहाँ पर एक साइड में एक लड़का है जिसकी रेड आइज़ हैं.
बिल्कुल चूहे जैसी आँखें हैं। चूहे जैसी आँखें का मतलब है जो हर चीज़ को बड़ी कीनता से देखता है, बहुत ही गहनता से देखने की कोशिश करता है, जिसकी आँखों में बहुत सारे सपने हैं। बहुत जल्दी-जल्दी आँखों को जैसे चूहा इधर-उधर फहराता है, फिराता है, उस तरीके से वो बॉय भी जो हो देख रहा था, वो भी इधर-उधर काफ़ी देर तक अपनी आँखों की जो चमक है, वो बिखेर रहा था। बट जो जो टॉल गर्ल थी वो क्यों हेड डाउन करके बैठी थी? क्योंकि शायद वो अपनी इस ज़िंदगी से खुश नहीं है। और जो बॉय है वो भी अपनी उसके रेड आइज़ में बहुत सारे ड्रीम्स हैं। द स्टंट अनलकी हेयर, हेयर होता है वंशज जो आपके सक्सेसर्स होते हैं, यानी जो आपके पूर्वज होते हैं, सॉरी से। सो हियर वी विल नो अबाउट ट्विस्टेड बोन्स। तो वो ये कहता है उसकी क्या है, वो काफ़ी अनलकी हेयर, वो वंशज है किनका? बहुत अनलकी है जो उसके पूर्वज थे, उन्होंने भी मेहनत नहीं की अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, और ये बच्चा भी एक राइट आइज़ की तरह ही रह गया, जिसने बिल्कुल भी यू कैन से ग्रोथ नहीं की। या स्टंट का मतलब होता है जब आप कुपोषण का शिकार होते हैं। तो वो यही कहता है कि ये बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो चुका है, और ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसकी जो बोन्स है वो बाहर दिखाई दे रही हैं और बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे कुपोषण वाले बच्चे की होती हैं। रिसाइटिंग ए फादर्स ग्रनाल डिजीज़, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत लंबे समय से इनके पूर्वजों की, यानी कि इनके फादर्स की जो लंबी बीमारी है वो अभी तक इनके साथ बंधी हुई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अब वो जो लेसन है जो हम बैठ के पढ़ रहा है, जहाँ पर वो डेस्क पे बैठा हुआ है, वहाँ से वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, अगर मैं बात करूँ डिम क्लास की, डिम क्लास क्यों है? क्योंकि वहाँ पर रोशनी है ही नहीं, सिर्फ एक खिड़की खुली है जिसमें से थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है। बिकॉज इतने स्लम एरिया में एक खुली हवा मिल पाना भी बहुत मुश्किल है। वन अननोटेड मीन्स, व्हाट डू मीन बाय द अननोटेड हियर? जो जिसको नोट नहीं किया जाता है, स्वीट एंड यंग गाय वहाँ है। हिज आई लाइव्स इन ए ड्रीम, जिसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं। ऑफ स्कैरल गेम्स इन ए ट्री रूम अदर देन दिस, जो किस चीज़ के सपने ले रहा है? जैसे खुला एक मैदान हो जहाँ एक पेड़ हो जिसमें स्कैरल जो है वो खेल रही हो, और वो भी खोखले से पेड़ में, और ऐसे ही बहुत सारे ड्रीम्स। सो यहाँ पे जो जनरली हमें बच्चों की डिस्क्रिप्शन मिला है वो ये है कि ये बच्चे बहुत ही लाचार हैं, और किसी भी तरीके से वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस पॉवर्टी विच हैज़ जस्ट प्रिवेल्ड बिफोर देयर सक्सेसरशिप। अब वो अपने पूर्वजों की जो गरीबी है, डिजीज़ है, वो आगे प्रिवेल करते रहेंगे, बिकॉज उनको दबा दिया जाता है। किन की यू कैन से किन की वजह से? दैट वाज द ब्यूरोक्रेट्स की वजह से उनको दबा दिया जाता है। जो बड़े अमीर तबके के लोग हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ना इनको अच्छे से ज़मीन देते हैं, ना ही अच्छे से डोनेट कर पाते हैं। सो इफ़ दिस इज़ ऑल अबाउट in this paragraph, so let me introduce some of the literary device in it used by Stephen Spender. Literary devices are the simile. Simile means when you compare two different things with the use of as and like. जब आप as और like यूज़ करके दो चीज़ों को compare करते हो तो वहाँ simile कहा जाता है। Simile यहाँ पे किस चीज़ से है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रूटलेट वीड्स हैं, जो उनके हेयर हैं, जो बच्चे हैं, उनको रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया गया है, राइट? जो बच्चे हैं उनका सिनेरियो किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? रूटलेस वीड से, एक बिना जड़ की खरपतवार से। मेटाफोर कब है? जब वो बॉय हैं, जब उसको कंपेयर किया जाता है, जैसे हियर ही सेज द पेपर स्विमिंग बॉय मीन्स एक पेपर के पतला जितना बॉय, यानी कि वो इतना पतला था कि जो उसकी बोन्स है वो बाहर भी दिखाई दे रही थी। तो जो पेपर स्विमिंग बॉय है, ये लाइन है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है उसकी स्लिम बॉडी से। नाउ दिस इज द मेटाफोर, यहाँ पे डायरेक्ट उसकी बॉडी को पेपर बोला गया है। नाउ हिज द रिपीटेशन किस वर्ड का है? फार ही इज द फर्स्ट ऑफ द थिंग। यहाँ पे बहुत स्ट्रेस दिया गया है फार पे, क्योंकि फार क्या है? बहुत दूर है ये सारी गस्टी वेव्स, किन से? इन चिल्ड्रंस के फेसेस से, यानी कि इन लोगों ने या फिर इन बच्चों ने कभी भी इस खुली हवा को महसूस तक नहीं किया है, जो अभी हम आगे पूरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं।
Now here are some of the explanation here. If I will talking about on the brief manner, this is only things which are just completed in the previous slide. You can make yourself reading with this, or you can take the screenshot of this very paragraph. This is the full explanation on the large manner. Now let's move towards the second paragraph. Here the own sour cream walls donations. Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all the cities, belt flowery trolley, trellisy valley, open-minded map, awarding the world its world. अब हम इतना ही बात करेंगे इसमें। अगर हम डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग की बात करें तो सोर यहाँ पे है। सोर मीन्स क्या होता है? कुछ भी ऐसी चीज़ जो अनप्लीजेंट हो, ऐसी कलर जो ऑफ वाइट कलर में बदल चुकी होती है, यानी जैसे कई जगह की ग्रीस जैसा कुछ लग जाता है, तो वैसे ही वो क्रीमी वॉल हो चुकी है, बिकॉज वहाँ पे हवा पानी जो है वो अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है, और वहाँ पे जो है ना फफूंद जो है वो लग चुकी है उन वॉल्स पे। डोनेशंस, तो अब वहाँ पर ना एक यू कैन से डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है हमें उस क्लासरूम का, कि उस क्लासरूम में क्या क्या है। वो क्लासरूम में जो है क्रीमी वॉल्स हैं, शेक्सपियर का हेड है, कुछ डोनेशन की चीज़ें हैं। ऐसा एक पिक्चर है जिसपे क्लाउडलेस डाउन है, यानी कि एक सवेरा है जिसमें एक भी बादल नहीं है, अच्छा सा सूर्य बना हुआ है, सन बना हुआ है। एंड सिविलाइज्ड डोम, ऐसी बहुत अच्छी एक यू कैन से शहर की एक प्रतिमा है, यानी कि एक पिक्चर है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से सिटी को दिखाया गया है। बेल्ड है, यानी कि बहुत सारी बेल हैं। फ्लावर्स हैं। ट्रेलिस वैले हैं, ट्रेलिस वैले भी है वहाँ पे। ये एक आइस फ्री वैली है, वो बहुत ग्रीनरी है, जो कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रिया में पाई जाती है। तो इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नोट दिस मैप दिस वर्ल्ड एंड वर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद द फोक। अब क्या है कि जो ये जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स थे, इनके लिए जो ये विंडो है, ये मैप जो है वो उनके लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि उनका जो वर्ल्ड है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। वो उनका जहाँ उनके सारे फ्यूचर हैं वो पेंट हो चुके हैं। पेंट किस से हुए हैं? बिल्कुल फॉग से, बिल्कुल उनके धुंधले जो है वो सपने हैं, और किसी भी तरीके से जो मैप वहाँ टंगा हुआ है वो किसी भी तरीके से उनके काम का नहीं है, क्योंकि मैप में जनरली एक बैड एग्जांपल यहाँ बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि मैप अगर गरीब लोगों को दिखाया जाए तो वो उसमें कहीं भी ट्रैवल करने के योग्य नहीं होते हैं, और वो अपने आप को एबल भी नहीं कर पाते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड वो घूम सकें। तो ये उनके लिए एक मजाक है कि आप अपने आसपास के एरिया को अच्छा दिखा रहे हो, बट विद इन द पिक्चर। और उन पिक्चर को देखकर इन बच्चों के सपनों में उड़ान आती है, और बहुत सारे सपने इनकी आंखों में भरते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद लेड स्काई। अब इनकी जो स्ट्रीट्स है वो बहुत ही मंद होती है, यानी कि बहुत ही थिन होती है, नैरो होती हैं, और जिनके ऊपर एक लेड का स्काई होता है, जो जिससे ऊपर वो उड़ ही नहीं सकते हैं। एक ऐसा यू कैन से इनविजिबल स्काई होता है, एक ऐसी लेयर लगी होती है जिससे ऊपर इनके पंख उड़ ही नहीं सकते। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स। अब ये सबसे हर चीज़ से दूर हैं, चाहे वो रिवर जो हमें उस पिक्चर में दिखाई दे रही है, जो हमारी वॉल पे टंगी हुई हैं, उन कैप्सिस की, उन स्टार ऑफ वर्ड्स की, उन सारी चीज़ों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये उनसे बहुत फार फार हैं, दैट मीन्स बहुत दूर हैं। Now let's go for the explanation here. The poet describe the wall of the school. अब क्या है, जो स्कूल है उसके वॉल को डिस्क्राइब किया जा रहा है प्रीवियस स्टैंजा में, which has already been done with the some of the key points. Now यहाँ कहा जा रहा है कि they are creamy in colors, the cream of sour cream, जैसे फफूंद लग जाती है उस तरीके की कलर। This means that the wall are not clean. They have not been painted recently. बहुत दिन हो गए उनको पेंट भी नहीं किया गया। The walls are covered with different charts, images that must have been donated by different people. ऐसे बहुत सारी इमेजेस और चार्ट्स वहाँ लगे हुए हैं उस क्लासरूम में, जो लोगों को डिफरेंट तरीके के सपने बुनने में मदद कर रहे हैं, जो लोगों ने डोनेट किए हैं। Now there is a picture of Shakespeare on the wall. अब वॉल पे सिर्फ शेक्सपियर के हेड तक की जो है एक पिक्चर लगी हुई है। हिज हेड विच इज़ बाल्ड लुक लाइक द सन राइजिंग इन द हॉरिजन। अब यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है किसका? शेक्सपियर के हेड का,
यानी कि उसका जो है ना वो आधा सिर यू कैन से बाल्ड है, विदाउट हेयर है, गंजा है। तो उस हेड को कंपेयर किया गया है किससे? राइजिंग सन, जो बिल्कुल यू कैन से एक लाइन की छोर पर होता है, वहाँ से उगते हुए सूरज की प्रतिमा से उसका कंपेयर किया गया है। एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक द सन इज राइजिंग एट द होरिजन एंड इज सेमी सर्कुलर लाइक ए डोम शेप। इट सीम्स टू बी बिहाइंड ऑल द सिटीज़। ऐसा नहीं लगता, जैसे आपने कई बार देखा हो कि आप दो पहाड़ों के बीच में एक सन को बना देते हैं तो हाफ ऑफ द जो सन है वो दिखाई देता है। वैसे ही हम यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि जब सुबह का समय होता है, जो सन है वो क्या करते हैं, यू कैन से राइज होता है, तो वो होरिजन से यानी कि अपनी जो लेयर है वहाँ से सेमी सर्कुलर दिखाई देता है, एक डोम शेप की तरह। डोम मीन्स जो गुंबद की तरह होता है। ऐसा लगता है जैसे वो सूरज सारी सिटीज़ को अपने पीछे छुपा लेता है। देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ द फेमस ट्रेलिस वैली विच वॉज ब्यूटिफुल फ्लावर्स। There was an image of map which helps all in its own way, but for these children the map of the world is irrelevant because the slums where they live in different form which is shown in the map. Now which I just tell you in the previous stanza that जो मैप वहाँ दिया गया है एक ट्रोलेस वैली की, वहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जो ब्यूटीफुल फ्लावर से भरी हुई होती है। मैप है जो बहुत इररिलेवेंट है उनके वर्ल्ड से। मैप में वो कहीं भी नहीं जा सकते, मैप से बिल्कुल इररिलेवेंट शो हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ देयर कंडीशन एंड सिचुएशन। देयर वर्ल्ड इज़ ओनली वट दे सी आउट ऑफ द विंडो ऑफ द क्लासरूम द स्लम। उनकी दुनिया सिर्फ इतनी ही है कि वो जिस विंडो से वो हवा आ रही थी उस विंडो से जितना झाँक सकते हैं वही उनकी दुनिया है, उससे आगे वो नहीं जा सकते। सो देयर फ्यूचर इज़ फुल ऑफ डार्कनेस। उनका फ्यूचर जो फुल ऑफ डार्कनेस है। Their future is compared to the narrow street, which means that there is no wide scopes available for their future growth. उनका जो फ्यूचर है वो किसी से कंपेयर किया गया है? वो एक बहुत ही यू कैन से नैरो स्ट्रीट से, यानी एक गली से जो बहुत ही तंग है, उससे उसका कंपैरिजन किया गया है, जहाँ पर कोई भी वाइड स्कोप नहीं है उनके फ्यूचर ग्रोथ का। दिस चिल्ड्रन आर फार अवे फ्रॉम द रेडियंट लाइट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। अब इन बच्चों के पास ना ही तो नॉलेज का और ना ही एजुकेशन की कोई रेडियंट लाइट है। सो इन दिस वेरी पैराग्राफ वी कम टू नो दैट वो बच्चे जो अभी एलिमेंट्री स्कूल में हैं और स्लम एरिया में पढ़ते हैं, उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डार्क है। उनके लिए हर एक चीज़ यूज़लेस है जो भी स्लम एरिया स्कूल में कि क्लासरूम में टंगी हुई हैं, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो डॉन की इमेजेस हो, चाहे वो उगते हुए सूरज की हो, चाहे वो मैप हो। मैप को यहाँ पर हमारे स्टीफन स्पेंडर ने एक बैड एग्जाम्पल माना है जो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ स्लम एरिया। Now let me discuss about some of the literary device used by the poet in this stanza. Here is a metaphor when the wells are described as the dull as creamy soap. यहाँ पे वॉल को डायरेक्ट ही क्रीम सोर बोल दिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, मेटाफर है। नाउ द फ्यूचर ऑफ द किड्स, जो फ्यूचर ऑफ किड्स है वो किससे, एक नैरो स्ट्रीट से कंपेयर किया है डायरेक्ट, जो बिल्कुल सील है, जिसपे एक लेड स्काई है, यानी कि एक शीशे की परत है जिससे ऊपर वो उड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें कंपेयर की गई हैं और डायरेक्टली की गई हैं। एजोनेंस होता है जब भी कोई वोवल साउंड रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से बेलेट फ्लावर ट्रोल्स ई, अब आपको यहाँ पे ई जो है वो साउंड वर्ड है वो आपको रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। ई फ्लावरी एंड ट्रोलिसी एंड द वैली, आपको जो ये रिपीटेशन दिखाई दे रहा है ये किस चीज़ का रिपीटेशन है, रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड ई। एंड हियर इज द एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एल्यूजन। एल्यूजन होता है जब हम किसी पास्ट के व्यक्ति का रेफरेंस लेकर आते हैं और लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ रेफरेंस किसका है, यहाँ रेफरेंस है शेक्सपियर का, शेक्सपियर का रेफरेंस है जो, हाँ, और ट्रोइलस वैली का भी है। ये दो ऐसे इवेंट हैं, यानी दो ऐसे यू कैन से वेल नोन थिंग्स हैं, पर्सन हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है और उनको एज एग्जाम्पल हमने अपने पोएम में यूज़ किया है। Here's the repetition of the far repeated। यहाँ जो फार है अगेन रिपीटेशन का है, लिटरेरी डिवाइस रिपीटेशन का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ फार जो है वो 2 टाइम यूज़ किया गया है। इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है क्योंकि यहाँ वो इनविजिबली ये बताना चाहता है कि इन सब चीज़ों का इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है।
बल्कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इन बच्चों का मजाक उड़ा रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं. Now here is the I think last not the least, let me give you the okay. Now here is the third one paragraph. He says surely Shakespeare is wicked. अब यहाँ पे किसने कौन बोल रहा है शेक्सपियर को विक्ड? विक्ड मतलब होता है इविल, बुरा आदमी. और वो शेक्सपियर को बुरा आदमी बोल रहा है हमारा स्टेफन स्पेंडर. क्यों? और मैप को क्या बोल रहा है? एक बैड एग्जाम्पल बोल रहा है. क्यों? विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. अब क्या है? क्योंकि शेक्सपियर जो है विक्ड इसलिए है क्योंकि उसका फोटो वहाँ टंगा हुआ है, जो खुद एक अच्छा पर्सनैलिटी था, जो खुद इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएगा. और मैप एक बैड एग्जाम्पल है जहाँ पर ये लोग कभी जा नहीं पाएंगे. और जो शिप्स और सन के मूवमेंट है पिक्चर में, वो सबको टेम्प्ट कर रही हैं, या टेम्प्ट मतलब लुभा रही हैं कि ताकि वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाए, स्टील कर ले इनको. वो उनको चुराने तक की सोच रहे हैं. इट मीन्स वो ऐसी जगह जाने की सोच रहे हैं, बट वो सोच रहे हैं, वो जा नहीं सकते. तो श्योरली वो कहता है कि ये सारी चीज़ें बैड एग्जाम्पल हैं, विक्ड हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें उनको ललचा रही हैं और वो चीज़ें पूरा नहीं कर सकती. शेक्सपियर इनकी ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकता. नाउ फॉर लाइव्स द स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स. वो हमेशा के लिए इन्हीं स्लाइली जो ट्रिकली है, टर्न है, इन्हीं क्रैम्प्ड होल्स में वो इन्हीं चीज़ों में रहेंगे. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, यानी कि उनकी जगह कहीं नहीं है, वो अपनी एंडलेस नाइट तक यहीं रहेंगे. क्या वो यहीं रहेंगे? दिस इज़ द क्वेश्चन. एंड इसीलिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग उन्होंने शेक्सपियर को विक्ड और मैप को एक बैड एग्जाम्पल बोला है. ऑन देयर slag heap their children wear skins peeped through by bones and spectacle of steel with mended glass like bottle beads on stone. All their time and space are foggy slum, so blot their map with slum as big as tomb. If I am talking about some of the difficult word here, then here is the cramped hole. Cramped means the confined thing, that congested thing, जहाँ पर वो हमेशा के लिए रह जाएंगे. In the slag heap, slag means the weak. These childrens, ये सिर्फ चिल्ड्रन जो हैं, ये बच्चे हैं, इनके बोन्स ने सिर्फ एक स्किन पहनी हुई है जो अलग से दिखाई दे रहा है कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं ये बच्चे. और उनको कुपोषण का कोई भी यू कैन से ट्रीटमेंट नहीं मिला है. स्पेक्टेकल्स यानी जो दृश्य है ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, मेंडेड होता है रिपेयरिंग का, जो दृश्य दिख रहा है कि जो ये लोग काम करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टील को मेंड करने का, तो इस तरीके से क्या है, वो उनकी ज़िंदगी है वो वहीं रह जाएगी. लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, यहाँ पर जैसे कि बोतल में एक स्टोन का जो बिट है वो फंस जाता है और वो उसी में रह जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता. सो ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, वो इसी स्लम एरिया में अपना टाइम और स्पेस दोनों ही बिता देंगे. सो ब्लॉट देयर माइंड सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम. डूम होता है वो एंड डे, वो डिज़ास्टर डे, वो डेथ डे, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है. ब्लॉट का मतलब होता है टू मार्क विद स्पॉट. तो हम अगर इन मैप्स को जो स्लम के साथ हैं, तो हम कहेंगे कि अगर ये मैप है तो ये इनका डूम्सडे होगा जिस दिन अगर ये कभी इस मैप के यू कैन से ब्लॉट कर पाए इस चीज़ को, कभी स्पॉट कर पाए इस चीज़ को. इट मीन्स वो मरते दम तक वो कहीं पर भी नहीं जा सकते. उनकी लाइफ है वो कंजस्टेड है, लिमिटेड है, और वो अपनी लाइफ में एंडलेस नाइट तक काम करते रहेंगे और वो अपने आप को एक बॉटल में फंसे हुए स्टोन की तरह पाएंगे. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्टैंजा हियर. Here he says, unless governor, I'm really very sorry for this. Let me talking about the literary devices here. Here the metaphor has been used as the tramp hole. Tramp hole means जो उनके घर को बोला गया है, बहुत ही ऐसे होल, ऐसे होम, सिर्फ वो होल की तरह ही होते हैं, छोटे छोटे से, जिनमें वो बस अपना गुजारा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं. इसलिए जो क्रैम्प्ड होल हैं, यानी कि उनके होम को डायरेक्ट क्या बोला गया है? क्रैम्प्ड होल्स. अब सिमिली की बात करते हैं. सिमिली की बात करें तो यहाँ पे लाइक यूज़ हुआ है. लाइक जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ क्या होगा? सिमिली होगा. नाउ अलिट्रेशन ऑफ यूज ऑफ एफ साउंड फ्रॉम फॉग हैज़ बीन रिपीटेड हियर like this in the fourth of the line here. F sound has been repeating
here. That's why it has been called as alliteration. Now let's move towards the last stanza here. He says, unless governor, inspector, visitor, this map become their window, and these windows that shut up on their lives like catacombs open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books the white and green leaves open history theirs whose language is the sun. Here the difficult word meaning, if I will talking about that, catacombs are the tomb, you can say grave, कब्र होती है underground. Okay, now here is the azure is the blue sky, azure is the blue sky, or you can say deep blue, whatever be that. सो अनलेस द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, ये कहते हैं जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स ये सभी इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो इनकी जो विंडो है वो विंडो ही रहेंगी, और उनकी जो लाइफ है वो हमेशा के लिए कैटाकॉम्स की तरह नीचे दब जाएंगे. इसलिए इन सभी चीज़ों को ब्रेक कीजिए उन सारी यू कैन से अथॉरिटीज़ को जो इन बच्चों को ग्रीन फील्ड से दूर रखती हैं और जो इनको डीप ब्लू स्काई से दूर रखती हैं. एंड लेट देयर टंग्स, और हम उनकी हेल्प करके इनकी जो टंग है, इनकी जो जीभ है, रन नेक्ड इनटू द बुक्स विद द वाइट, और इनकी जो लाइफ है वो वाइट बुक्स से भर जाए. यानी कि वाइट इज अ सिक्योरिटी, राइट. अब वो जहाँ रहते हैं वहाँ वाइटिश जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, वो सिर्फ सारे यू कैन से डिस्गस्टिंग सी एक गलियों में रहते हैं जहाँ कीचड़ ही कीचड़ है. एंड ग्रीन लिव्स ओपन हिस्ट्री देयर होज लैंग्वेज इज द सन, और हम उनको क्या करें, उनको एक ओपन हिस्ट्री दें, यानी कि एक ऐसी जगह दें जहाँ पर ग्रीन लिव्स हैं और बहुत अच्छा यू कैन से सिनेरियो है. नाउ लेट मी कंक्लूड ऑफ द लिटरेरी डिवाइस हियर. But before literary device, let me conclude of the explanation. In the last stanza here, the poet says, the government should take notice of the problems being faced by these kids. Every government of every country should take notice of this problem. हर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना चाहिए. He urges them to change the life of these kids. उनको इन किड्स की जो है वो लाइफ चेंज करनी चाहिए. एंड मेक द वर्ल्ड मैप ए रियलिटी फॉर देम, और जो मैप है वो जो सिर्फ एज ए पिक्चर टंगा हुआ है, जो उनके लिए बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, उनको रियलिटी में तब्दील करना चाहिए. देयर इज़ अ नीड टू ब्रेक द रिस्ट्रिक्शन, हम सारे रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो पॉवर्टी में है, लैक ऑफ रिसोर्सेज में है. इसलिए ही वॉन्ट्स द गवर्नर एंड द पब्लिक टू हेल्प दिस किड्स इन अचीविंग देयर ड्रीम्स. इसलिए वो चाहता है कि जो इन बच्चों की हालत है, जो ये बच्चे अपने आँखों में सपने लिए बैठे हैं, उनको गवर्नर और जो पब्लिक है वो क्या करें, अचीव करने में हेल्प करें. एज दिस विल टेक देम अवे फ्रॉम फॉग टू एज्योर स्काई, इसलिए आप लोग ही हैं जो गवर्नर हैं, पब्लिक हैं, वही इन बच्चों को इनके धुंधले सपनों से लेकर एक खुले आसमान तक ले जा सकती है, एज्योर स्काई तक ले जा सकती है. द पोएट हियर वांट्स टू से दैट इन दिस वे द किड्स कैन बी टेकन फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ देयर प्रेजेंट टू द ब्राइट फ्यूचर. इसी प्रकार वो कहना चाहता है कि इन बच्चों की जो ज़िंदगी जो अभी प्रेजेंट है, जो अंधकार में है, उसे एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जाया जा सकता है. He wants these kids to experience the sand and the beauty of the nature, as this will lead to a desire of gaining knowledge. तो यहाँ कहता है कि इन बच्चों को सैंड यानी कि रेत, जो चमकीला रेत होता है, उसको एक्सपीरियंस करने दिया जाए और जो ब्यूटी ऑफ नेचर है उसको फील करने दिया जाए, ताकि वो डिज़ायर उनके अंदर किस चीज़ की बढ़े, जो जिज्ञासा हो किस चीज़ के बढ़े, नॉलेज को प्राप्त करने की. They will then go through the white and green leaves. वो यहाँ वाइट लीव्स हैं बुक्स के लिए और ग्रीन लीव्स हैं किस चीज़ के लिए, इट मे बी द मनी एंड आल्सो फॉर द नेचुरल एरिया, यानी जो हम ग्रीनरी होती है जो उन्हें सिर्फ पिक्चर में दिखाई देती है, ताकि वो बाहर जाकर वाइट एंड ग्रीन लीव्स को भी पहचाने. हियर वाइट लीव्स डिपिक्ट द बुक्स एंड ग्रीन लीव्स डिपिक्ट द नेचर. This will take the result in their progress and this will be able to paint a bright future for themselves. इसलिए वो हमें अपील करता है गवर्नर से, सारी अथॉरिटीज़ से, कि हम उनकी हेल्प करें ताकि वो भी अपने फ्यूचर को एज ए ब्राइट जी सकें. Now let me discuss about the literary device here. Here the literary device used by Stephen Spender is the metaphor. The metaphor कब होता है, जब दो चीज़ें एक साथ यूज़ यानी कंपेयर किया गया हो, उनको बिना किसी लाइक और एज के. तो यहाँ पे जैसे बुक्स हैं,
उनको एज ए यू कैन से वाइट एंड ग्रीन लीव्स बोला गया है, राइट। ग्रीन लीव्स किनको बोला गया, नेचर को, और वाइट किसको बोला गया, डायरेक्ट बुक्स को। सो यहाँ पे मेटाफर है क्योंकि वाइट इज डायरेक्टली रेफर्स टू द book. Then here is the anaphora. Anaphora is the word when the repetition of the word in two consecutive line, दो अलग अलग लाइन में एक ही वर्ड, सेम वर्ड स्टार्टिंग में रन कर रहा हो यानी कि आ रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा। Here the run and run is the example of anaphora. So this is all about the thing. Now let me discuss about the theme of the poem. The theme of the poem is an elementary school return is a plight. plight होता है दुर्गति, यानी कि हम जब किसी पूर कंडीशन को देखते हैं, किन की यहाँ कंडीशन दिख रही है, पूर चिल्ड्रन की लिविंग इन स्लम्स। यहाँ हमें बताया जाता है उन बच्चों के बारे में जो स्लम एरिया में स्लम जिंदगी जी रहे हैं और बहुत ही बुरी जिंदगी जी रहे हैं। The poet Stephen Spender wants the life of slum children be changed. वो चाहता है कि इन बच्चों की ज़िंदगी है वो चेंज हो जाए। He wants their poverty to end. वो चाहता है कि उनकी poverty end हो जाए। He wishes them to live in healthier, hygienic, beautiful environment. वो चाहता है कि इनकी life hygienic हो, beautiful environment में हो, and he wants their future to be bright and full of hope. According to the poet, their lives can only be changed if governor, teacher, inspector, visitor and people do more to help them. उन्होंने स्पेसिफिक फ्यू ऑफ द अथॉरिटीज़ को जो है वो पॉइंट आउट किया है, जैसे गवर्नर को, टीचर को, इंस्पेक्टर को, विजिटर्स को और पीपल को जो उनकी हेल्प करने आगे आए और उनकी ज़िंदगी को इनकी ज़िंदगी में बाहर लेकर आए। मेरे पैल्ट्री डोनेशंस वुडंट सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डोनेट करके चले जाते हैं, उनको पता नहीं वो डोनेशन जा कहाँ रहा है, तो वो सिर्फ सॉल्व नहीं कर सकता इनकी पॉवर्टी को, इलिटरेसी यानी अज्ञानता को, अनपढ़ता को एंड बैकवर्डनेस को। इन चीज़ों को वो ख़त्म नहीं कर सकता कि जैसे आपने डोनेशन में दे दिया एक पिक्चर, तो पिक्चर उन्होंने अपने वॉल पे लगा दिया, वो वॉल पे लगा रहेगा बट उनकी ज़िंदगी में तो वो कुछ काम ही नहीं आएगा। द रिच पीपल एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू डू मोर फॉर देम। इसलिए जो रिच पीपल हैं, अमीर आदमी हैं, गवर्नमेंट है, उनको इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी फुल ऑफ होप के साथ जी पाएँ। Here is the end of this very poem. I hope that you have just gone through all the poem very finely and it is free words, so आप इसको आराम से पढ़िए and you will get the you can say visibility of your things जो आप एक आम इंसान होकर भी सोच सकते हैं, वही सारी चीज़ें इसमें प्रिवेल्ड हैं। और इन लेटर ऑन इफ़ यू विल डिस्कस अबाउट द थिंग, तो इसमें से जनरली यही कहा गया है कि हमें किस तरीके से स्लम चिल्ड्रन यानी स्लम एरिया के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरी और नरक वाली ज़िंदगी जी रहे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होती कि उनके हज़ारों सपने रोज़ मरते हैं और रोज़ उठते हैं। हमें उनके विंग्स को थोड़ी उड़ान देनी चाहिए, हौसला देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएँ। सो हियर इज़ ऑल अबाउट द पोम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम written by Stephen Spender, whose complete name is Sir Stephen Harold Spender CBE. Thank you very much. Now we will meet in the next video.